A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So in the last class we have started the new chapter, that is infrastructure, right? So in this chapter we have already discussed what is the meaning of the infrastructure, what are the different types of the infrastructure, and the next topic that we have started, that is importance of the infrastructure, right? So these 4 points we have already discussed in the last class, that is infrastructure promotes development, infrastructure develops agriculture, infrastructure facilitate proper functioning of the economy, and infrastructure enhances the quality of life. So in today's class, first of all, we studied all those points which we have not discussed in the last class, that is infrastructure expand market size, infrastructure promotes capital formation and investment, infrastructure facilitate outsourcing, and infrastructure promotes interdependence and linkages in the production. So let's get started. So the next one is, that is infrastructure expands market size. Infrastructure expands market size. Okay. So creating new market and expanding the existing one is very important for increasing the production. ठीक है, नया मार्केट क्रिएट करना, न्यू मार्केट को क्रिएट करना और एक्सपैंड करना जो भी एग्जिस्टिंग वन है इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए. सो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, बैंकिंग, एडवर्टीजमेंट, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है एक्सपैंड करने को मार्केट में. सो दिस फैसिलिटी इन्हांसिंग द लार्ज स्केल प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग नीड्स ऑफ द बिगर मार्केट साइज. ठीक है, ये सारे क्या हेल्प करते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन को, जो भी ग्रोइंग नीड है फॉर द बिग मार्केट साइज. नेक्स्ट वन इज, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट द कैपिटल फॉर्मेशन, प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट. And investment. So strong support system like education, health, energy, transport, communication helps in the raising the productivity raise करता है and thus production, फिर production भी increase होगा. So as the output increases, जैसे ही output क्या होगा, increase होगा, generation of income also increases. तो income का generation भी क्या होगा, increase होगा. It would cause more savings and the more capital formation. इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा more savings होगी, capital formation भी होगा और more investment भी होगा. So increase in the domestic investment would promote large scale production. Large scale production को बढ़ाएगा, large scale production होगा and wider market भी क्या होगा, वो wide होगा, which may attract the foreign investors. जो foreign investors को क्या करेगा, attract करेगा. Also फॉरेन इन्वेस्टर्स को ऑल्सो टू इन्वेस्ट इन द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी में वो भी क्या करें, इन्वेस्ट करें. सो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में इंट्रोड्यूस हुआ था, सो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस इन इंडिया हैज एनलार्ज. जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो एनलार्ज हुआ एंड डेवलप हुआ, ड्यू टू विच, जिससे क्या हुआ, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में विद द हेल्प ऑफ द economic reform which is introduced in India in 1991. Next one is, that is infrastructure facilitate outsourcing. Outsourcing. Right? So India is emerging as a global destination for the BPOs. ठीक है, इंडिया में क्या है, ये BPOs जो है वो बहुत ज़्यादा तेज क्या है, इनिशिएट हो रहा है. आउटसोर्सिंग मतलब हम लोग कोई भी, जो भी जहाँ पे भी हमें नीड है उनको हम लोग क्या करते हैं, बोरो कर लेते हैं. दैट मीन्स अगर हमारे यहाँ की प्रॉपर यहाँ पे सर्विसेज अच्छी नहीं मिल पा रही बैंकिंग और इंश्योरेंस की, तो हम अदर कंट्री से उन चीज़ों को
सर्विसेज ले रही है, ठीक है, जैसे कॉल सेंटर, स्टडी सेंटर्स, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस, ड्यू टू डेवलप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली रिवॉल्यूशनरी ग्रोथ ऑफ द आईटी सेक्टर, ठीक है, जो आईटी सेक्टर में बहुत रिवॉल्यूशनरी ग्रोथ हो रहा है. सो दिस इनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इकोनॉमिक. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. स्टेट ऑफ infrastructure in India, right? So traditionally the government has been solely responsible for developing the country's infrastructure, but this was inadequate to meet the growing demand of the infrastructural development. Okay, सो ट्रेडिशनली क्या था, जो गवर्नमेंट क्या थी वो सोली रिस्पॉन्सिबल थी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का, बट दिस वॉज इनएडिक्वेट. वो इतना नहीं था, एडिक्वेट नहीं था कि जो भी ग्रोइंग डिमांड हो रही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की उसको फुलफिल कर सके, ठीक है. सो नाउ द प्राइवेट सेक्टर बाय इटसेल्फ एंड ऑल्सो इन जॉइंट पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट सेक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है. तो प्राइवेट सेक्टर भी क्या है, प्राइवेट सेक्टर या तो खुद ही और या तो विद दी अलॉन्ग विद दी गवर्नमेंट सेक्टर वो क्या कर रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन दी डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर. सो डिस्पाइट so much technical progress in the world, women in the rural areas are still using biofuels such as crop residues, dung, fuel wood to meet their energy requirement. About 90% of the rural household use biofuels for cooking, ठीक है. So despite so much technical progress होने के बावजूद भी क्या हो रहा है कि विमेन जो है रूरल एरियाज में अभी भी वो बायोफ्यूल्स का यूज़ करी, जैसे काउ डंग हो गया, ठीक है, फ्यूल वुड हो गए, उन्हीं सारे का यूज़ करें. तो अबाउट 90% क्या है रूरल हाउस होल्ड अभी भी बायोफ्यूल्स का ही यूज़ करें फॉर देयर कुकिंग. सो रूरल हाउस होल्ड वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू फेच फ्यूल, वाटर एंड अदर बेसिक नीड्स, ठीक है. तो जो रूरल हाउस होल्ड है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे कवर करते हैं, जैसे वो फ्यूल्स को ब्रिंग कर सके, ला सके, वाटर एंड अदर बेसिक नीड्स है उनको, उसके लिए बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को जाना पड़ता है. सो दे लैक वेरी बेसिक फैसिलिटीज ऑफ द लाइफ. उनके पास क्या होता है, रूरल हाउस होल्ड के पास बहुत वेरी बेसिक फैसिलिटीज ऑफ द लाइफ वो भी नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल इन रूरल इंडिया ओनली 56% ऑफ द हाउस होल्ड हैव एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एंड 43% ऑफ देम स्टिल यूज केरोसिन, एंड इट इज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001. अभी 2011 का के सेंसस के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि 56 हाउसहोल्ड हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था और 43% ऑफ देम स्टिल यूजिंग केरोसिन, ठीक है. सो वाटर सप्लाई इज लिमिटेड टू वेरी लिमिटेड प्लेसेस. जो वाटर सप्लाई भी हो रही है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड प्लेसेस पे अभी भी लिमिटेड ही है. सो टैप वाटर अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड टू ओनली 24% ऑफ द हाउस होल्ड, and about 76% of the rural household use open sources of water such as wells, tanks, ponds, lake, river, etc. ठीक है. तो अभी भी टैप की अवेलेबिलिटी, टैप वाटर अवेलेबिलिटी वो भी बहुत जगह कम है, और 76% जो रूरल हाउस होल्ड है वो भी अभी भी ओपन सोर्स का ही यूज़ कर रहे हैं. सो एक्सेस टू इम्प्रूव सैनिटेशन इन रूरल एरियाज इज ओनली 20%. जो भी इम्प्रूव सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ है वो बस अभी भी रूरल एरियाज में कितनी है, 20% ही है. एंड स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी मेड क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल. ओके, तो यहाँ पे एक टेबल दिया है, यू कैन सी, एंड इट इज़ ऑल्सो गिवन इन योर बुक. सम इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज. अदर कंट्री के साथ इंडिया का क्या किया, कंपैरिजन किया है कि इन्वेस्टमेंट में वाटर सोर्स पे कितना % है, और सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ में मोबाइल सब्सक्राइबर कितने हैं, पावर जनरेशन इंडिया में कितना है. तो अलग अलग जगह पे इसको इंडिया को कवर किया है. चाइना, हांगकांग, साउथ कोरिया, पाकिस्तान, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया के साथ कंपैरिजन किया है, ठीक है. तो कह रहा है द अबव टेबल शोज दैट दो इट इज वाइडली अंडरस्टूड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज द फाउंडेशन ऑफ द डेवलपमेंट, ठीक है. ये क्या है, ये अंडरस्टूड है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये फाउंडेशन है डेवलपमेंट का. इंडिया इन्वेस्ट ओनली 30% ऑफ GDP ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है. इंडिया क्या करती है, ओनली
34% ऑफ जीडीपी वो किस पे इन्वेस्ट करती है? इन्वेस्ट ऑन दी इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ओके, सो विच इज फार बिलो दैट ऑफ चाइना एंड इंडोनेशिया, जो बहुत पीछे है इंडिया और चाइना के साथ जब हम लोग इसका कंपैरिजन करते हैं। सो एक्सेस टू दी इम्प्रूव वाटर सोर्स सैनिटेशन इज फार बिलो देन दी अदर कंट्री, कि जो भी वाटर सोर्स तक एक्सेस हो गया, सैनिटेशन हो गया, वो अदर कंट्री के से अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो इंडिया क्या है? बहुत पीछे है। सो शेयर ऑफ पावर एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज लोअर एज कंपेयर टू मैनी अदर कंट्रीज। जो भी शेयर है पावर में, कम्युनिकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो भी बहुत कम है एज कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज। सो सम इकोनॉमिक्स हैव प्रोजेक्टेड दैट इंडिया विल बिकम द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड फ्यू डिकेड्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, इंडिया, कुछ ऐसे इकोनॉमिक्स थे जो उन्होंने बोला था कि इंडिया थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी, बट अभी इंडिया क्या है? फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, मतलब फिफ्थ नंबर पे है। सो फॉर दैट टू हैपन इंडिया विल हैव टू बूस्ट इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंडिया को अपनी रैंक को अच्छा करना है, अपग्रेडेड करना है, ऊपर इंक्रीज करना है, सो इंडिया को क्या करना पड़ेगा? दे हैव टू मोर डेवलपमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। उसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ज़्यादा उसको बूस्ट करना पड़ेगा। सो इन एनी कंट्री एज द इनकम राइजेस, जैसे ही इनकम राइजेस होता है, सो द कॉम्पोजिशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट चेंजेस सिग्निफिकेंटली। ठीक है, तो जैसी कॉम्पोजिशन इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हो जाता है? वो सिग्निफिकेंटली चेंज होता रहता है। सो फॉर लो इनकम कंट्री, जो भी लो इनकम कंट्री है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, पावर एज आर मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनके लिए जो भी बेसिक सर्विसेज हैं, जैसे इरिगेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, पावर हो गया, ये सारे क्या हैं? ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। So as economies mature and most of their basic consumption demands are met, the share of agriculture in the economy shrinks and more service related infrastructure is required. ठीक है, as economics क्या होगी? economies mature होगी, most of their consumption demands are met, जो भी consumption पे demand हो रही है वो met होगी। so the share of agriculture in the economy, जो agriculture पे share है वो भी क्या होगा? श्रिंक होगा एंड मोर सर्विस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड। जो भी सर्विस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। सो दैट इज वाई द शेयर ऑफ पावर एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज ग्रेटर इन हाई इनकम कंट्री। तो जो भी शेयर है पावर में, टेलीकम्युनिकेशन में, वो जो हाई इनकम कंट्रीज है, हाई इनकम ग्रुप कंट्रीज, उसमें क्या होता है? वो ज़्यादा होता है। ठीक है, so thus development of infrastructure, development of the infrastructure and economic development go hand in hand। ठीक है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट हो रहा है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। सो एग्रीकल्चर डिपेंड किस पे करता है? कंसिडरेबल एक्सटेंट ऑन द एडिक्वेट एक्सपेंशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। Industrial progress depends on the development of the power and electricity generation, transport and communication। ठीक है, एग्रीकल्चर बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? कि प्रॉपरली एडिक्वेट और एक्सपेंशन और डेवलपमेंट किसका हो? इरिगेशन फैसिलिटीज का हो। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस किस पे डिपेंड करता है? कि पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का भी प्रॉपरली एक्सपेंशन हो। सो ऑब्वियसली इफ प्रॉपर अटेंशन इज नॉट पेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, अगर कोई प्रॉपर अटेंशन नहीं पे किया जाएगा डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज लाइकली टू एक्ट एज अ सीवियर कॉन्स्टेंट ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, सो ये क्या है? एक सीवियर कॉन्स्टेंट हो जाएगा किस पे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। ठीक है, सो दिस इज योर स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। सो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एनर्जी। वो आपको पढ़ना नहीं है, अभी सिलेबस से हट गया है। इलेक्ट्रिसिटी, पावर भी आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज हेल्थ। ठीक है, हेल्थ पढ़ते हैं। So the next topic is, so put down the heading that is health.
health, right? So health, पहले ये डिस्कस करते हैं कि हेल्थ क्या है, ठीक है? सो हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट, हेल्थ को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो हेल्थ क्या है? इट इज अ मीन्स ऑफ स्टेट ऑफ फिजिकल, mental and social soundness. Social soundness. Okay? So health क्या है? इसको हेल्थ में हम लोग बस हेल्थ का मतलब ये समझते हैं दैट मीन्स अगर कोई फिजिकली फिट है तो वो क्या है? वो हेल्दी पर्सन है। नहीं, हेल्थ का मतलब होता है means of state of complete, वहां पे फिजिकल साउंडनेस में हो, वो फिजिकल भी हेल्दी हो, मेंटल भी हेल्दी हो, एज वेल एज उसका सोशल भी साउंड हो, ठीक है? हम बस ये नहीं बोलते हैं कि वो वर्दी या सब कुछ, वो बस फिजिकली अगर हम लोग फिट हैं दैट मीन्स वी आर हेल्दी। नहीं, हम मेंटली भी फिट होने चाहिए और सोशली भी। मतलब अगर हम लोग सोसाइटी में जाते हैं, सो हाउ वी बिहेव, सो अगर आप किसी के साथ रूड बिहेव करते हैं तो आप बोलते हैं ना, अरे बीमार है ना इसलिए ऐसे बात कर रहा है, मतलब कि वो हेल्थ फिजिकली तो फिट हो गया, मेंटली तो फिट हो गया, बट वो सोशली फिट नहीं है। तो जब भी हम लोग अगर बात करते हैं कि हेल्दी पर्सन कौन होगा, जो स्टेट ऑफ जो कंप्लीट फिजिकली भी साउंड होगा, मेंटली भी साउंड होगा, एज वेल एज दी सोशल भी वो साउंड होगा, ठीक है? सो हेल्थ इज नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि उसको एब्सेंस ऑफ डिजीज का, उसको कोई भी डिजीज नहीं है, बट ऑल्सो द एबिलिटी टू रियलाइज वंस पोटेंशियल। ये भी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी खुद की पोटेंशियल को भी रिकॉग्नाइज कर ले, एंड ही और शी इज एबल टू रिकॉग्नाइज और रियलाइज वंस पोटेंशियल। दैट मीन्स अगर हम हेल्दी हैं तो हेल्दी होने का ये मतलब नहीं है कि मेरे को कोई डिजीज नहीं है, आई एम नॉट फेसिंग और सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज। इट मीन्स ऑल्सो कि मैं अपनी पोटेंशियल को भी क्या करूं, रियलाइज करूं दैट व्हाट आई एम, राइट? सो इट इज अ यार्डस्टिक मीन्स इट इज अ सिंपली स्टैंडर्ड ऑफ वन वेल्स बीइंग। वंस का जो वेल बीइंग है उसका एक हेल्थ को क्या है, एक पैरामीटर की तरह यूज करते हैं कि हम खुद को मेजर करते हैं दैट वी आर फिट और नॉट, ठीक है? तो हेल्थ क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल साउंडनेस. Health means that absent. It doesn't mean that the absence of the any disease. It means that we have ability to realize one's potential. ठीक है? So health is a holistic process. अगर हम लोग बात करते हैं हेल्थ, सो हेल्थ क्या है? इट इज द होलिस्टिक प्रोसेस. होलिस्टिक प्रोसेस रिलेटेड टू ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. अगर हम लोग होलिस्टिक का मतलब समझें तो इट मीन्स द ओवरऑल डेवलपमेंट. सो हेल्थ इज सिंपली इट इज द होलिस्टिक प्रोसेस ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल एज वेल एज द नेशन. ठीक है, किसका किसका डेवलपमेंट होगा? ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसका होगा? जो नेशन में रह रहे हैं, जो पीपल हैं, एज वेल एज नेशंस का भी डेवलपमेंट होगा. ठीक है, सो होलिस्टिक प्रोसेस है विच इज रिलेटेड टू द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन. ठीक है, ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. ठीक है, सो though the 20th century has seen a global transformation in a human health,
unmatched in history. So it may difficult to define the health status of a nation in terms of a single set of measures. ठीक है. So the 20th century क्या है, वो global transformation है human health में जो unmatched है in history. So it may difficult, ये difficult है to define the health status, जो health status को define करने के लिए in nation में in terms of a single set of measure. एक single set of measure से हम इसको define नहीं कर सकते. ठीक है. So health of people is assessed by taking into account indicator. जैसे हम लोग अगर किसी भी कंट्री में हेल्थ को मेजर करना है तो हम उसमें डिफरेंट इंडिकेटर्स को ले सकते हैं. दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, न्यूट्रिशनल लेवल्स अलॉन्ग विद द इंसिडेंस ऑफ कम्युनिकेबल एंड द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. ठीक है. कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के साथ हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ले सकते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ले सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ पर्सन को न्यूट्रिशनल सारे फूड आइटम्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं. तो इन सारे के थ्रू हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं. ठीक है. सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इवॉल्व्ड अ नेशनल हेल्थ पॉलिसी. ठीक है. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो किस में इवॉल्व है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी विच टेक इनटू अकाउंट द प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव एंड रिहैबिलिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द हेल्थ. ठीक है. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो डिफरेंट नेशनल हेल्थ पॉलिसी में इवॉल्व है जिसमें वो कैसे प्रिवेंटिव मेजर लेने हैं, कैसे प्रमोट करना है हेल्थ, ये सारी चीज़ों से वो लिंक्ड अप है. सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. ठीक है. ठीक है. किसी भी कंट्री के लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का डेवलपमेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए. सो हेल्थ इज एन इसेंशियल आस्पेक्ट. हेल्थ क्या एक इसेंशियल आस्पेक्ट है टू मेक ह्यूमन कैपिटल मोर एफिशिएंट, जिससे ह्यूमन कैपिटल को ज़्यादा एफिशिएंट बना सके, कॉम्पिटेंट बना सके, मीन्स कैपेबल बना सके एंड एज वेल एज इफेक्टिव भी बना सके. ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. द टॉपिक इज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. सो एज अ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं. ओके. सो डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर्स अ कंट्री ऑफ हेल्दी मैन पावर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है. अगर हम लोग डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर क्या करता है, हेल्दी मैन पावर हो, किसी भी कंट्री में हेल्दी मैन पावर हो फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए. सो इन रिसेंट टाइम स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट people are entitled to health care facilities. ठीक है. people क्या हैं, they all are entitled for the health care facilities. So it is a responsibility of the government. ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंश्योर दी राइट टू हेल्दी लिविंग. ठीक है. उनको राइट दे हेल्दी लिविंग के लिए. सो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, नर्सेज एंड अदर पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स. ठीक है. हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा, प्रॉपर हॉस्पिटल्स मिले, डॉक्टर्स मिले, नर्सेज मिले और पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स भी हों, बेड भी हो, इक्विपमेंट भी हो रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल एंड अ वेल डेवलप्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. सो इट इज ऑल्सो ट्रू दैट mere presence of health infrastructure is not sufficient to have a healthy people. So the same should be accessible to all the people. मतलब ये सारी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारों को क्या हो मिले. ठीक है. So since the initial stage of planned development policy envisaged that no individual should fall to secure medical care. मतलब ऐसा ना हो कि पॉलिसी मेकर ऐसे जो भी पॉलिसी बनाए कि कोई भी इंडिविजुअल ऐसा ना हो कि उसके वो सारी फैसिलिटीज मिल ना पाए. ठीक है. बिकॉज ऑफ द इनेबिलिटी टू पे फॉर इट. ठीक है. ऐसा नहीं कि वो इनेबल है तो उसको कोई भी फैसिलिटीज नहीं मिलेगी. ठीक है. तो ऐसी पॉलिसीज को बनाना चाहिए. सो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वो है, वो 3 tier सिस्टम पे बेस्ड है. ठीक है. जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है इट इज बेस्ड ऑन दी 3 tier. फर्स्ट वन इज प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी, सेकेंडरी हेल्थ केयर
last one is tertiary healthcare. Okay, so all these three are the three tier of the health infrastructure. Okay, so primary health care, it includes identification, prevention and controlling of the prevailing health problems. ठीक है, सो इसमें क्या क्या लेते हैं हम लोग? आइडेंटिफिकेशन किसका करते हैं? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करते हैं जो भी हेल्थ प्रॉब्लम प्रिवेल कर रही है किसी भी इकोनॉमी और कंट्री में. सो इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रमोशन ऑफ द एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर हो, फूड सप्लाई हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर हो. ठीक है, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर भी हो, और मेंटल हेल्थ हो, इसेंशियल ड्रग्स भी लोगों को मिले, प्रमोशन हो, इम्यूनाइजेशन, लोगों को इम्यूनाइजेशन के लिए क्या हो? प्रमोशन हो, जैसे मतलब जो भी इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं उनके लिए. सो ऑक्सिलरी नर्सिंग, मिडवाइफ हो, ठीक है, जिसको ANM बोलते हैं, मिडवाइफ, जो गांव बेसिकली विलेज एरियाज में होती हैं, इज द फर्स्ट पर्सन हु प्रोवाइड सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज रूरल एरिया में प्रोवाइड करती हैं. सो टू अचीव द अबव प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, केयर सेंटर्स, द ओके, एंड हॉस्पिटल हैव बीन सेट अप इन विलेजेस एंड टाउन्स विच आर जनरली मैन्ड बाय द सिंगल डॉक्टर. जिसमें प्राइमरी हेल्थ केयर में किसको लेते हैं? एक सिंगल डॉक्टर होते हैं जो बेसिकली रूरल एरियाज में होते हैं. नर्स होती हैं, उसमें लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ द मेडिसिन होती है, ऐसा नहीं बहुत लार्ज अमाउंट में मेडिसिन होती हैं, बहुत कम अमाउंट में क्या होती है? मेडिसिन होती हैं. सो इन्हीं को क्या बोलते हैं? दैट इज PHC, दैट इज प्राइमरी हेल्थ केयर्स, और दी CHC मतलब कम्युनिटी हेल्थ केयर्स एंड सब सेंटर्स, इनको बोलते हैं. नेक्स्ट आता है, मतलब ये एक लोकल लेवल पे, स्मॉल लेवल पे जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं वो होती है प्राइमरी हेल्थ केयर. सेकेंडरी हेल्थ केयर में हम लोग किसको लेते हैं? सो व्हेन हेल्थ कंडीशन ऑफ द पेशेंट्स इज नॉट मैनेज बाय द PSCs. ठीक है, जब भी जो भी हेल्थ कंडीशन पेशेंट की वो मैनेज नहीं हो पाती प्राइमरी हेल्थ केयर से, सो दे आर रेफर टू दी सेकेंडरी और दी टर्शियरी सेक्टर. फिर उन्हें किधर रेफर कर दिया जाता है? मतलब अगर वो कंट्रोल प्राइमरी हेल्थ केयर में कंट्रोल नहीं हो पाती कोई भी डिजीज है, तो उनको क्या कर दिया जाता है? रेफर कर दिया जाता है. तो कहाँ पे रेफर किया जाता है? या तो सेकेंडरी में, वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे उसका प्रिवेंशन हो पाएगा, क्योर हो पाएगा, और टर्शियरी सेक्टर. सो दीज इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आते हैं? हॉस्पिटल विद दी बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड हेल्थ केयर, वो जो प्रोवाइड बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जिसमें एक्सरेज होता है, एक्सरे कराना, सर्जरी कराना, ECG जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, एडवांस मेडिकल टेस्ट जो भी होते हैं, दे आर सेटअप इन द बिग टाउन्स. वो कहाँ पे ज़्यादातर होते हैं? बिग टाउन्स में ही बेसिकली होते हैं. एंड दीज इंक्लूड्स प्रीमियर इंस्टीट्यूशन विच इम्पार्ट क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन एंड कंडक्ट रिसर्च, एडवांस हॉस्पिटल, एंड दीज आर सेटअप इन द बिग टाउन्स एंड द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स. ठीक है, वो कहाँ पे होती हैं? टाउन्स में होते हैं, और जो भी डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर होता है मेन डिस्ट्रिक्ट में, वहीं पे होते हैं. एंड दे फंक्शन एज बोथ एज द प्राइमरी हेल्थ प्रोवाइडर एंड ऑल्सो प्रोवाइड बेटर केयर हेल्थ फैसिलिटीज. ठीक है, वो दोनों ही की तरह ट्रीट करते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर भी की तरह भी, और बेस्ट जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी वो प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज दैट इज टर्शियरी हेल्थ केयर. ठीक है, सो टर्शियरी हेल्थ केयर में क्या आते हैं? These includes hospital which are equipped with the advanced machines and the techniques to handle emergency. ठीक है, वो क्या होती हैं? बेसिकली हॉस्पिटल्स होते हैं जो जिसमें क्या होते हैं? एडवांस मशीन होती हैं, टेक्निक्स होते हैं जो टू हैंडल द इमरजेंसी एंड कॉम्प्लिकेटेड डिजीज. जो भी एक कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है या कोई भी इमरजेंसी है, उसको वो प्रॉपरली ट्रीट करते हैं. सो दीज आर ओपनड इन द बिग सिटीज एंड द टाउन्स. वो कहाँ पे ज़्यादातर होती हैं? बिग सिटीज़ में होती हैं एज वेल एज टाउन्स में होती हैं. एंड दीज इंक्लूड्स प्रीमियर इंस्टीट्यूट विच इम्पार्ट क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन, और जो क्या करती हैं? एक मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ साथ मेडिकल एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है. ठीक है, जैसे MBBS, MD, MS, ये सारी भी फैसिलिटीज़ क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं. एंड कंडक्ट रिसर्च, और वहाँ पे रिसर्च भी कराया जाता है. ऑल्सो प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, और एक प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती है. एंड सम ऑफ देम आर PGI,
जिसमें आपने सुना होगा पीजीआई होता है हर जगह, लखनऊ में पीजीआई है, चंडीगढ़, ये सारे पीजीआई हो गए, या एम्स हो गया, एम्स जो आपका दिल्ली में है, ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या है, एक टर्शियरी हेल्थ केयर है जो एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट भी देते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास. सो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो. थैंक यू.